Hello everyone, online classes, class 9th, subject science, chapter 6, tissue, utak. From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cell. In unicellular organism, a single cell perform all basic function. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. But in multicellular organism, there are millions of cells. Most of these cells are spliced to carry out a few functions. Each spliced function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human being, muscles cell contract and relax to cases movement. Nerve cell carry messages, blood flow to transport oxygen, food, hormones, and waste material. And soon, in plant, vascular tissue contact food and water from one part of the plant to other parts. So, multicellular organism so division of liver cell specializing in one functions are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cell called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood phloem and muscle are all example of tissue. हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अदक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिसे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। यह ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. वह कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। Are plant and animals made of some types of tissues? क्या पौधे और जंतुओं एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? Let's compare their structure or functions. Do plant and animal have the same structure? Do they both perform similar function? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? There are noticeable differences between the two. Plant are
stationary or fixed, they don't move. Most of the tissues they have are supportive, which provides them with structural strength. Most of these tissues are dead, since dead cell can provide mechanical strength or as easily as live ones and need less maintenance. आगे हम देखते हैं, दोनों में इस स्पष्ट अंतर होता है कि पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं चूँकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। वे सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। Another difference between animal and plant is in the pattern of growth. The growth in plants is limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissue. Various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. Cell growth in animal is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing region in animal. दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। यह पौधे की अपेक्षा ऊर्जा से अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। इट इज विथ रेफरेंस वृद्धि अथवा विभाज्योतक तथा स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फॉर मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन even in very complex plant. These fundamental differences reflects the different modes of life produced by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedimentary stance on one hard plant and active locomotion on the other plant animals, contributing to these differences in organ system design. अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर्जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों को गतिहीन अस्तित्व में तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों को विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail. जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। मेरिस्टेमिक टिश्यू, विभाज्योतक। The growth of plants occurs only in certain specific regions. This is because the dividing tissue, also known as meristematic
tissue is located only at these points depending on the region where they are present. Meristematic tissue are classified as apical, lateral, and intercalary. New cell produced by meristem and meristem or endothelium like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. हम देखते हैं पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों को में पाए जाने वाले कारण होती है। ऐसे ऊतकों को विभाज्योतक भी कहा जाता है। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित है? विभाज्योतक की उपस्थित वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय तथा अतिवृष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिका प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही वह बढ़ती और परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और यह दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tips of stem and roots and increase the length of the stem and the root. The growth of the stem or root increase due to lateral meristem. Cambium intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes on either side of the node on twigs. परोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने के परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अतिवृष्ट विभाज्योतक कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। As the cell of the tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose wall, and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can we think why they would lack vacuoles? You might want to refer to the functions of vacuoles in the chapter on cell. विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधनी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधनी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधनियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक. What happens to the cell formed by meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size, and a function is called differentiation. Cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissue. विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? यह एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वह स्थायी ऊतक के निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक के विकास करती है। थैंक यू।